Hello everyone, this is Rohit from Jawahar Navodaya Vidyalaya Sitamarhi 97-2002 batch. I did my up to my 10th class. I did my studies from there only. Then I left and I completed my 12th class from Army School Ranchi. Then I did my graduations in biotechnology from Bihar University, and I did my masters in biotechnology from Amity University, Noida. And when I came back to my home, I got appointed on ad hoc basis as an assistant professor in Bihar University. Ever since, it has been like 8 years I have been teaching in a college, MDDM college, which is a women's college. And I'm pursuing my research as well after clearing my GATE examination. और साथ साथ में कई बार ऐसा है कि क्रिएटिविटी जो होती है वो कहीं कहीं जा कर के रुक जाती है. वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इस पे बहुत सारे फंडिंग्स वगैरह पे डिपेंड करता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, सो आई एस्टैब्लिश माई सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स as well as I'm doing some work for the industries as well, for the biofertilizer and other products related with the biotechnology. और मेरी स्टोरी ये है कि मैं शुरू से ही एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ. मैं कभी भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने क्लास का नहीं रहा हूँ. और कहीं ना कहीं ये जो एक कमी रहती है आप में, एक मूवी है लाइफ ऑफ पाई, उसमें कहा कि आपके जीवन में संदेह का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. ये आपके अपने विश्वास की परीक्षा होती है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है. तो एक जो संदेह रहता था कि नहीं यार, ये नहीं आता है मेरे से, या मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अपने ऊपर के एक विश्वास का टेस्ट करता था. और समहाउ मैं पढ़ाई करते 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 अब मैं पीएचडी, मेरी 1-2 साल का और बचा हुआ है. 1-2 साल में मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी. फिर तो मैं बाकी अपने जो जूनियर्स, जो बच्चे अभी जस्ट नवोदय ज्वाइन किए हैं या उससे पास आउट हो चुके हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने ड्रीम एक तो पहला है कि ड्रीम देखना बंद मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल एट्रीब्यूट है और यही एकमात्र चीज़ है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है. और कहीं ना कहीं आप पैसे के लिए एक उम्र तक में आप काम कर सकते हो, फिर आपको वो अपना पैशन और ड्रीम जो है वो उसी को ही फॉलो करना पड़ता है. अदरवाइज यू विल जस्ट कीप वर्किंग एज अ मशीन फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस एंड दे विल फुलफिल देयर ओन ड्रीम बिकॉज ऑफ और बाय योर वे ऑफ वर्किंग फॉर देयर कंपनीज एंड फर्म्स. So never stop dreaming, follow your dreams, do what you love to do in a legal way. Do what you love to do. और मेरे से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी, काउंसलिंग बायोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, जॉब प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल से रिलेटेड, प्लीज लेट मी नो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प रिलेटेड विद माई फील्ड. Thank you guys and all the best for your future. Dear brothers and sisters, this side Asutosh and I'm from batch 1999 to 2004. I have done my MBA, BBA and some other few courses related to my career path. That was like spa management 3 months course, then 1 year spa diploma in massage therapist and few other courses like NLP and Reiki healing mastership that I did all to support my career path. That includes some meditations and all that is helpful while suggesting therapies to the guests. Currently I am working with Hayat Regency Creek Heights Dubai as a spa and health club in charge. My only message to you guys is that it doesn't matter from where you start, it doesn't matter from where you belong, it doesn't matter who you are. It's all about how far you reach in your life. It's all about at the end what you have achieved. At the same time, it also doesn't matter how capable you are. You can see the people have potential but has done nothing, but the people, those who have nothing but with their hard work they achieve things which were never expected from them. So it's about how willing you are. It doesn't matter how much capable you are, it's all about how willing you are to achieve goals in your life. Last but not the least, I would like to say, people say that when our life is about to end, our whole life flashes before our eyes in 3 seconds. So make sure that 3 seconds of the flash will be worth watching. Thank you so much. Dear juniors, I am Bipul from 8th batch of JNV Sitamarhi, currently working as a software developer at Microsoft. I have faced many unsuccessful moments in my life. I got failure many times. In several exams, I secured less marks. But later point of time, I realized what my passion is and I followed my passion. And later point of time, I got a real success in my life. So my small message to you is follow for what you are passionate about.
always follow your passion. So while choosing your subject in the future, always choose the subject which you are really passionate to study. Without passion, there is very, very less chance of success. So always follow your passion, always follow your dreams. Don't go behind the crowd. Because these days many people are just seeing the crowd. Oh, these people are going in engineering, these people are going in medical. Don't follow the crowd. Just follow your passion, follow your dreams. You will be definitely become successful one day. Thank you very much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धांत आज़ाद है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। व्हेन आई वाज इन नवोदया आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। बट आपके लिए, क्योंकि आप अभी अपने टीन एज में हो, आपके पास काफ़ी टाइम है ये समझने सोचने के लिए कि आप अपने लाइफ से और आप अपने आप से चाहते क्या हैं। सो सबसे पहले ये डिस्कवर कीजिए कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि मार्केट में वर्सटाइल जॉब्स हैं, जैसे टीचिंग है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन एक्टिंग, स्पोर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है और सारे अपॉर्चुनिटीज़ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स की डिमांड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर योर सेल्फ एंड बी द डिज़र्विंग वन। यू विल डेफिनेटली गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप नवोदयन हो तो आप टैलेंटेड ज़रूर होंगे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम संतोष कुमार है। इस एलुमनी मीट के इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उपस्थित अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी बड़े भाइयों, दोस्तों और छोटे भाइयों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाई हैं। दोस्तों, मैंने 2012 में अपना 12वीं यहीं से किया था, JNV सीतामढ़ी से। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स किया और अब PhD शुरू करने वाला हूँ। इस दौरान मैंने नेट क्वालिफाई किया। नेट के साथ उसी साल JRF भी पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया और अभी बतौर गेस्ट फैकल्टी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए रिसर्च के लिए कुछ काम भी करता हूँ। तो दोस्तों, सौभाग्यवश मेरे पास बहुत सारी बातें नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना चाहूँगा। सौभाग्यवश साइंस सब्जेक्ट में मार्गदर्शन के लिए या प्रेरणा के लिए बहुत सारे सीनियर जो कि वहाँ मंच पर हैं या आज जो वहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, किसी न किसी रूप में नवोदय विद्यालय के छात्रों को मदद करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात कॉमर्स और आर्ट्स या अदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए है, तो उस तरीके के मार्गदर्शक मौजूद नहीं है, या जो है भी उनको उस तरीके से शायद वो प्रेरणा नहीं मिलती या वो चीज़ें जो उनको फोर्स कर सके कि आप वहाँ जाइए और उनको समझाइए, एक नए रास्ते के लिए आप उनको प्रेरित कीजिए, वो नहीं हो पाता। इसमें हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि वो और कौन से नए आयाम हैं जिन पे हम जा सकते हैं, अपने जीवन के लिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट में बहुत ही चुनौती भी है और बहुत से अवसर भी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उसके अलावे आर्ट्स और कॉमर्स में आप देखेंगे, या होटल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, ऑफिस मैनेजमेंट की बात करूं, IT सेक्टर की बात करूं, ये सब ऐसे आयाम हैं जिनको अगर आप चाहें तो चुने। ये आपके ऊपर, ये आपको तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप अगर देखें तो हमारे अपने ही JNV सीतामढ़ी के बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। आप शायद उनको ना जानते हो। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर नहीं है कि हम उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है, जो नॉन साइंस अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या करें कि वो हमारे पास आए या हम उनके पास जाएं। मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने अपनी यात्रा कैसे अभी तक का तय किया। JNV सीतामढ़ी से निकलने के बाद चाहे वो 8वीं का एग्जाम हो, 10वीं का एग्जाम हो, 12वीं का एग्जाम हो, उस हर एग्जाम के बाद वो सोच का सिलसिला शुरू हो जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। 12वीं के बाद भी मैंने इंग्लिश ऑनर्स में DU में एडमिशन लिया, लेकिन 1 साल के दौरान मुझे पता चला कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नया कोर्स आया, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम
उसमें एक कोर्स था BA ऑनर्स बीटेक इन ह्यूमैनिटीज, 4 ईयर कोर्स था। मैंने उसमें एडमिशन लिया और वो कोर्स बहुत ही अच्छा था। मैं अपने दिल की बात बताऊं तो वो नवोदय विद्यालय का एक्सटेंशन है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। आप उसमें जाएंगे, उसको उसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू होता है, और जितनी सारी सुविधाएं नवोदय विद्यालय में दी जाती हैं लगभग उतनी ही सारी सुविधाएं मिलती हैं थोड़े से नॉमिनल चार्जेस पे, और आपको एक बहुत बड़ा आयाम, बहुत बड़ा मंच मिलता है जिसके थ्रू आप अपने आप को भारत के जो स्तरीय जो मंच है आप वहां तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की चीजें हो, चाहे वो खेल कूद में हो या को करिकुलर एक्टिविटीज में हो। मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही कम्युनिटी रेडियो 2 साल तक चलाया और मैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी रेडियो को चलाया। वहां से निकलने के बाद खासकर मैं आप सबको बताऊंगा कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर cic.du.ac.in पे आप जाएं और देखें कि वो क्या कोर्स है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि नवोदय के छात्रों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा, आप वहां जरूर जाएं। इस कोर्स की खासियत ये है कि आपको क्लासरूम के अलावे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, चीजों को असल में करके कैसे सीख सकते हैं, किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स हम क्या सोच सकते हैं। तो वो चीजें अगर आप में चैलेंजेस लेने का मुद्दा है, आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए यकीनन बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में मीडिया गवर्नेंस का MA कोर्स किया, और मीडिया में मेरा रुझान शुरू से ही रहा है। उसके साथ साथ मीडिया में, न्यूज़पेपर में या टेलीविजन चैनल में अलग अलग तरीके से मैं कंट्रीब्यूट करता रहा। अपने जो मेरा मनपसंद सब्जेक्ट भी था, जो मेरा मनपसंद क्षेत्र भी था। उसके बाद MA के दौरान ही बिना किसी कोचिंग के अपने आप से ही नेट की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF क्वालिफाई किया। आपको बता दूं कि JRF क्वालिफाई करने के बाद 5 साल तक PhD के लिए भारत सरकार आपको 32,000-33,000 रुपये देती है। तो अब मैं कुछ ही दिनों बाद या कुछ महीनों बाद PhD ज्वाइन करने वाला हूँ, और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी भारत सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ। मेरा एक्सटेंशन हो गया है, तो अभी मैं अगले सेमेस्टर भी पढ़ाऊंगा। इन सब के साथ कुछ समय बचाता हूँ कि और क्या कर सकता हूँ अपने लिए। तो एक सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, तो उनके साथ काम करता हूँ, रिसर्च उनके लिए करता हूँ। पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस उठते हैं वो रिसर्च के थ्रू तैयार किया जाता है, फिर हम वो भेजते हैं कि कौन से जनहित के मुद्दे हैं जिन पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी कर सकते हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि मेरी मासिक आय ये है, मेरे पिताजी की मासिक आय ये है, और मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरी हिंदी ठीक नहीं है, तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ, और इस बार नहीं आ सका इसके लिए बहुत खेद, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगली बार अपनी पूरी टीम के साथ आऊँ, खासकर अपने नॉन साइंस वाले टीम के साथ आऊँ। और नए साल के लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। Hello juniors, this is Abhimanyu from 2009 batch. I was a Dakshina scholar currently studying computer science and engineering in NIT Pondicherry. My message to you people is, well, क्लास में टॉप करना ज़रूरी नहीं होता, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं होता। What really matters is कि आप हर एक एक्टिविटी को ट्राई करें, हर एक सब्जेक्ट को ट्राई करें, जब तक आपको कुछ ऐसा ना मिले जो कि आपको रियली इंटरेस्टिंग लगता। थैंक यू। हेलो, मैं काजल सिंह JNV सीतामढ़ी से हूँ। मैं 2009 to 16th बैच से हूँ। मैंने 10th अपना JNV सीतामढ़ी से किया है, +2 मैंने JNV मुजफ्फरपुर से किया है। करंटली मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, BCom ऑनर्स से, एंड आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड स्टूडेंट, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि कभी अपने चॉइस को, कभी अपने इंटरेस्ट को इग्नोर मत करना, हमेशा उसको फॉलो करना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपके एम तक लेके जाती है। क्योंकि
एक है ना कि हर कोई हर इंसान, हर स्टूडेंट हर एरिया में स्किल्ड नहीं हो सकता है, उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो अगर हम उसको फॉलो करें तो हम अपनी एम को इजीली अचीव कर सकते हैं। हर इंसान हर कुछ नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में और कोई कॉमर्स में। जरूरी नहीं कि जो कॉमर्स में अच्छा है वो साइंस में अच्छा हो, जो साइंस में अच्छा है वो आर्ट्स में अच्छा हो, यू नो। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं अपना देना चाहती हूँ कि मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कभी से टॉपर स्टूडेंट नहीं थी। मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया, बहुत लोगों ने कहा कि साइंस ले लो अच्छा हो जाएगा, बट मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में था और मैंने लिया और मुझे इजीली 90% आ गए। शायद मैं साइंस लेती तो मुझे 50% भी नहीं आते। ये मेरा अपना ये है कि मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में नहीं था। जितनी अच्छे से मैंने कॉमर्स को पढ़ा और अभी पढ़ रही हूँ, अभी कर रही हूँ, वो शायद मैंने साइंस लिया होता तो मैं नहीं कर पाती। सो वही होता है ना कि हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मैं ये करूँ तो मुझे पता नहीं है कि कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है, क्या क्या इसके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो मैं इतना कहना चाहूंगी कि अपने चॉइस को आप फॉलो कीजिए। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी को भी, मेरे किसी भी छोटे भाई बहनों को कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड कोई किसी चीज की जरूरत हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड एट लास्ट ऑल द बेस्ट टू यू एंड Hello everyone, myself Aparajita from 2009 to 2016 batch. I did my 12th from JNV Sitamarhi and now I am studying in NIT Kurukshetra. और अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी है। मैंने खुद सेकंड अटैम्प्ट में NIT मिला है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप असफलताओं को देखकर निराश मत होना। अगर असफलता आती है तो कोई बात नहीं, सफलता भी ज़रूर मिलती है। कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलेगी। अगर आपको अपने गोल पे पूरा फोकस है विथ कंसंट्रेशन तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेट से ही सही बट मिलेगी ज़रूर। और मुझे बहुत दुख है कि मैं एलुमनी मीट में नहीं आ पाई। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ आप लोग के बीच। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय। हाय नवोदय, मैं कोमल कुमारी। मैंने JNV सीतामढ़ी से 10th किया 2019 to 2014 और अभी मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, DU की ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और मैं आप लोग को यही बात कहना चाहूँगी कि अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। बी फेथ ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग। आप लोग को एक बात बताऊँ कि हम जुड़वा सिस्टर्स थे, 10th तक हम इवन बेंचमेट्स थे नवोदय में। हमने बहुत सी ऐसी चीजें की जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी कभी उसने मेरा पेपर दिया, उसने कि मैं मैथ्स में बहुत वीक थी और मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं रही ज़्यादा 10th तक। लेकिन उसके बाद मैंने आर्ट्स लिया, उन्होंने अपना दूसरा सब्जेक्ट लिया। फिर मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना कर पाऊंगी, पर मुझे भरोसा था कि करना चाहिए और मैंने किया। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पे भरोसा रखो, आप कर सकते हो। और अपनी मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो वही करो। जरूरी नहीं कि साइंस ले रहे, जरूरी नहीं UPSC करना हो, कुछ भी करना हो। आप जिसका इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, आप उसको करो। भीड़ के पीछे मत भागो। हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है। आप देखो आप किसके काबिल हो, किस में काबिल हो, आप उस पर फोकस करो। थैंक यू। Hi everyone, myself Neha from 2009 to 14 batch. I passed 10th class from JNV Sitamarhi. After that I joined another institute and complete my 12th. Now I am doing Bioptometry from NIMS University, Jaipur. Now I share my personal experience. जैसा कि मुझे पता चला है कि आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, टेंशन में रहते हो,
तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर। जो आपका ड्रीम है वो होगा ही पूरा, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। जैसे अभी आप 8th में हो, 6th में हो, 12th में हो, जिसमें भी हो आप अभी प्रेजेंट में अपना आप अच्छा करो, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आगे का सोचकर आप अपने प्रेजेंट टाइम को खराब मत करो। मैं भी जब 10th 11th में थी तो बस आगे का सोचती थी, क्या होगा आगे, क्या होगा मेरे साथ, मेरा ड्रीम पूरा हो पाएगा या नहीं होगा, अच्छा कुछ होगा या नहीं होगा। तो आप ज्यादा टेंशन ना लो, जो होगा सो अच्छा होगा। बस यही कहूंगी कि डर मुझे भी लगा फासले देखकर, डर मुझे भी लगा फासले देखकर, लेकिन मैं बढ़ते गई रास्ते देखकर। तो यही है कि आप डरो मत, डर तो लगा ही रहता है, पर यही रास्ता है अपना आगे का, आप अपना बढ़ते रहो आगे। तो और मैं वहां नहीं आई तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे भी आने का मन था, पर मेरे यहाँ एग्जाम्स चल रहे हैं तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट एल्यूमनी मीट में मैं वहां आऊं और आप लोगों से मिलूं। अगर आप लोगों को किसी को मेडिकल कोर्स से रिलेटेड अगर कोई बात करनी हो मेरे कोर्स से, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपका हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय। So dear juniors, you have already watched what our alumni spoke to you. Whenever you feel helpless or whenever you need help, whenever you are stuck at any crossroads and you need some guidance, you need some suggestions, don't hesitate to reach out to us. We alumni are there for you. We will be always helping you out. We are just one ping away. Thank you.